Hello students, today I am going to introduce about the next topic, that is Thomson model of an atom. Now, what is Thomson model of atom? The atom consists of, means the atom made up of electrons and protons. Okay, and now the next step was to know how the arrangement of these particles in an atom. So Thomson was the first scientist who proposed a model of an atom. He proposed that, इसने क्या propose किया? An atom made up of a uniform positive charge sphere. Uniform sphere of positive charge in which the electrons is present here. Okay, yeah, in which the electrons are distributed uniformly inside the sphere. These are the electrons and these are the sphere of positive charge. Sphere of positive charge. Okay students, it is just like a watermelon. ठीक है, जैसे वाटरमेलन में जो रेड पार्ट होता है वो आपका पॉजिटिव चार्ज है और जो आपके सीड्स हैं ब्लैक कलर के वो आपके क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स. ओके, फर्स्ट पॉइंट तो इसने यही बताया बेटा कि जो एटम है दैट इज मेड अप ऑफ यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज स्फीयर इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. ओके, एंड पॉइंट नंबर सेकेंड कि the positive and negative charge that are equal in magnitude. So the atom as a whole is electrically neutral. ठीक है, जो एटम है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. ओके, he compared the Thomson model of an atom with the watermelon. Means the positive charge in an atom is spread all over like a red part of the watermelon. Okay, and the electrons that are present inside the positive charge sphere, it is just like a black seed present in the watermelon. Okay, so this is the Thomson model of an atom. Now this model is also called as plum pudding model. इसको हम क्या बोलते हैं, plum pudding model. Okay, now next model is Rutherford model of an atom. Rutherford's model of an atom. देखो बेटा ये क्या कहते हैं कि what was the contribution of Rutherford in developing the atomic model. इसमें क्या था कि जो थॉमसन मॉडल था that could not give the proper explanation for the stability of an atom, कि how the atom is stable. So in 1911 Rutherford performed some experiment and these experiment is called as Rutherford scattering experiment. In this experiment, the bombardment of a thin sheet of gold foil by the alpha particles, and he selected a gold element. इसने gold के element को ही select किया बेटा. Why gold element is selected in his experiment? Because gold could be beaten into a thin sheet, and this thin sheet is made up of thousands of atoms. ठीक है, the alpha particles that were obtained in the form of a narrow beam by passing through the lead plate. Okay, and a circular screen coated with जिंक सल्फाइड. देखो बेटा ये एक आपका लेड ब्लॉक है
इसमें आपने अल्फा पार्टिकल्स को यहाँ रखा हुआ है एंड दिस इज अ स्लिट सिस्टम। इसको हम, ये आपकी जो है गोल्ड फॉयल है, बिल्कुल थिन। ओके, यहाँ लगा देती हूँ इसको। और ये आपकी जो है एक सर्कुलर स्क्रीन है, ठीक है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। और यहाँ पे आपको इस स्क्रीन का नाम है जिंक सल्फाइड स्क्रीन। देखो बेटा, ZNS स्क्रीन है ये, ठीक है। ये स्लिट है बेटा, और ये आपकी क्या है, थिन गोल्ड फॉयल है, थिन गोल्ड फॉयल। ओके, दिस इज अल्फा पार्टिकल्स। ये क्या है आपका अल्फा पार्टिकल। ओके, मीन्स द अल्फा पार्टिकल्स दैट हैविंग 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ओके, एंड द मास इक्वल टू 4u। और मास कितना होता है बेटा, 4u होता है। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 4 हीलियम 2। और ये अल्फा पार्टिकल्स क्या करता है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ही इमिट होता है, ठीक है, निकलता है। तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स होता है बेटा, ये स्लिट के थ्रू यहाँ से पास होता है एंड इट स्ट्राइक ऑन द गोल्ड फॉयल। तो ये आपकी जो गोल्ड फॉयल है बिल्कुल ऐसी होती है, लेकिन ये यहाँ स्ट्राइक करता है। तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स आपके सीधे चले जाते हैं और ये इस जिंक सल्फाइड स्क्रीन से टकराते हैं, ठीक है, ऐसे। और कुछ आपको ऐसे भी दिखाई देते हैं। ओके, तो जो ये एक सर्कुलर स्क्रीन है दैट इज कोटेड विद द जिंक सल्फाइड दैट वर प्लेस्ड अराउंड द गोल्ड फॉयल टू डिटेक्ट द डिफ्लेक्शन सफर्ड बाय द अल्फा पार्टिकल्स। जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स इसके पे स्ट्राइक होंगे और तो वो उनके डिफ्लेक्शन को कौन ऑब्जर्व करेगा, जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द ऑब्जर्व। अब ऑब्जर्व क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन। Point number 1, most of the alpha particles that passed straight through the gold foil, मतलब जो alpha particles हैं that passed straight through the gold foil, okay। Second ये कहता है some of the alpha particles that were deflected by, कुछ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं by the small angle, ओके। अब देखो, जैसे कुछ तो स्ट्रेट गए हैं, यहाँ पे सीधे गए हैं, कुछ थोड़े से एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए हैं, इधर भी, या कुछ लार्ज एंगल से भी डिफ्लेक्ट होंगे, ओके। अब पॉइंट नंबर 3 क्या है बेटा, अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स दैट वर डिफ्लेक्टेड बाय अ लार्ज एंगल। ये लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए हैं और दे रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग विद देयर पाथ, ओके। या फिर या तो लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे या वापस अपने पाथ पे ही बैक आ जाएंगे, ओके। नाउ तो ऑब्जर्वेशन में हमें क्या बताया, ये आपका ऑब्जर्वेशन डायग्राम है बेटा, यहाँ पे बना देती हूँ। आपको ऐसे बनाना है, पहले आप ऐसे एटम्स बनाओगे, 3 एटम्स, फिर इसके साइड में आप एक एटम्स की लेयर यहाँ बनाओगे, ओके, एक यहाँ बनेगी और एक यहाँ बनेगी। फिर आप इसकी सेम वही लेयर बनाओगे आप एज इट इज़, 1 2 एंड ये इसको भी टच करेगा एंड 3, ओके। अब यहाँ बेटा आपके क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, हर एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। देन सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दैट पास्ड स्ट्रेट, ओके बेटा, कुछ आप स्ट्रेट पास कर दो सीधा। सम अल्फा पार्टिकल्स दैट
are deflected by small angle. Okay, some alpha particles that are deflected by small angle, and some alpha particles they strike on the nucleus and they are come back, means large एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं या फिर वापस आ रहे हैं. ओके, तो ये लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं बेटा, ये स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और ये दैट पासेज स्ट्रेट. ओके, नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन बिहाइंड दिस. देखो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे. अब इसका जो है कंक्लूजन क्या निकला. देखो मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दैट पासेज स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल. इट मीन्स दिस शोज दैट, जैसे ये सीधे निकल गए, इसका मतलब क्या है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम दैट इज एम्प्टी. जो स्पेस है एटम के अंदर वो क्या है, खाली है. ठीक है. सेकेंड इसने ये बताया मोस्ट ऑफ द स्पेस in an atom is empty. Most of the alpha particles that are deflected by small angles. What is the reason behind this? कि small angle से ही क्यों deflect हुए हैं. अब alpha particles are the positively charged particles and its mass that would be deflected by the some heavy positively charged particles in the center. अब न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है और अल्फा पार्टिकल्स पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इट मीन्स बोथ shows positive charge, so positive positive repel each other, so we can say that they are deflected by the small angle. Okay, तो रीजन क्या आएगा बेटा कि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हैवी positive center in an atom. Okay, or this positive center is called as the nucleus. Okay, nucleus भी क्या है, पॉजिटिव पार्ट है, और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव पार्ट है. नाउ पॉइंट नंबर 3. A very few alpha particles that are deflected by large angle or they were reflected back along their path. So you can say that when the alpha particles that are deflected by very large angle, it means alpha particles is very small and the space occupied by the heavy positively charged center that must be very very small, so they are deflected by the large angle. It means आप क्या बोलोगे, alpha particles are small. Okay, so this is about the Rutherford model of an atom, and this is the alpha particle scattering experiment, this is observation, and this is the conclusion of this experiment. Okay, now the next is Rutherford nuclear model of an atom. Rutherford nuclear model of atom. What is the nuclear model of an atom? देखो बेटा, point number 1. The atom is made up of 2 parts. Atom 2 पार्ट से बना हुआ है. फर्स्ट इज न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है. ओके, एंड बाहर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सर्कुलर पाथ. ओके, मीन्स 1 पार्ट इज न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियर पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस. एंड दिस पार्ट जो न्यूक्लियस से बाहर है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. ओके, ये आ जाएगा. अब इसमें हम सेकेंड पॉइंट क्या कह सकते हैं कि न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल रीजन वेयर मोस्ट ऑफ द मास
and wall of the positive charge that is concentrated. मीन्स जो साइज है न्यूक्लियस का दैट इज वेरी स्मॉल. साइज ऑफ न्यूक्लियस दैट इज वेरी स्मॉल as compared to the size of atom. Okay. Radius of nucleus that is in order of 10 raised to power. अब radius कितनी है बेटा? 10 raised to power -15 meter. Whereas the radius of atom that is equal to 10 raised to power -10 meter. This positive charge and the mass is due to protons and all the protons that are present inside the nucleus. अब न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. ओके. नाउ द पॉइंट नंबर 3. एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इज द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस where the electrons is distributed. And these electrons that revolve around the nucleus at a very high speed. And the electrostatic forces of attraction between the electrons and the nucleus that is balanced by the centrifugal force. Centrifugal force में क्या होता है बेटा? जो force of attraction that is present between the circular path. Okay. And this force that is present on the revolving electrons. Okay. Point number 4. The total negative charge of the electrons that is equal to the total positive charge of the protons. Okay. Negative charge equal to positive charge present inside the nucleus so that the atoms is wall electrically न्यूट्रल. ओके. इसलिए एटम्स क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. नाउ नेक्स्ट इज, ये जो आपका न्यूक्लियर मॉडल है इट इज जस्ट लाइक अ सोलर सिस्टम वेयर द न्यूक्लियस इज कंपेरेबल टू जस्ट लाइक अ सन and the electrons is compared to the planets. So the electrons at one time they were called as the planetary electrons. Okay. Now next is drawbacks of Rutherford model of an atom. Now what are the drawbacks? Rutherford could not explain the stability of an atom. Okay. ये भी क्या नहीं बता पाया था? It could not explain the stability of an atom. He failed in view of electromagnetic theory of radiation, which was given by the Maxwell. Okay. तो इस थ्योरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन है उसने क्या बताया बेटा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल्स है दैट विल एक्सेलरेट, अगर वो एक्सेलरेटेड हो रहा है, मोशन में है, तो वो क्या करेगा? एनर्जी इमिट करेगा, एनर्जी छोड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. मीन्स चार्ज पार्टिकल्स अगर वो मूव कर रहा है तो इट विल रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. बट अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, अब रदरफोर्ड ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, इट मीन्स द इलेक्ट्रॉन्स वुड बी इन द स्टेट ऑफ एक्सेलरेशन ऑल द टाइम्स. सो द इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज पार्टिकल्स. ओके. एंड द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट दैट शुड बी इमिट रेडिएशन कंटिन्यूसली. तो अगर ये भी मूव कर रहा है तो इसको भी रेडिएशंस इमिट करने चाहिए. ठीक है. सो इट वुड स्लो डाउन बट नॉट एबल टू विदस्टैंड द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस. और अगर मूव करेगा कंटिन्यूसली और अपनी रेडिएशंस छोड़ेगा, इट मीन्स इसके अंदर जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट विल बी, वो क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी. ठीक है. एंड हो जाएगी. तो इसके अंदर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी और ये स्लो डाउन होगा. ठीक है. तो जो ऑर्बिट है
जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं जिस ऑर्बिट में, दैट विल गो ऑन बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, वो छोटा होता जाएगा, ऐसे घूमते घूमते ये आके न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएगा, ठीक है। तो इट वुड मूव क्लोजर एंड क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड फॉल ऑन इन द न्यूक्लियस बाय द स्पाइरल पाथ, ठीक है। तो ये आपका ऐसा बन जाएगा, जस्ट ये आपका इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ ये ऐसे रिवॉल्व करेगा और एकदम आके न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएगा, ऐसे आके, एंड दैट विल बी, ये न्यूक्लियस पे गिर जाएगा और ये क्या करेगा, कलैप्स कर देगा, ठीक है, कलैप्स होगा। इट मीन्स एटम, बट एक्चुअली हम जानते हैं कि एटम क्या है, स्टेबल है, बट रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग ये इसकी स्टेबिलिटी नहीं रही, क्योंकि एटम्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आके न्यूक्लियस पे ही गिर जाएंगे, ठीक है। तो एटम स्टेबल कैसे है, तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, ओके। सो दिस इज द मेन लिमिटेशन ऑफ Rutherford's scattering experiment. Now the next topic is atomic number and mass number. Atomic number and mass number. देखो बेटा, means what is the concept of atomic number and mass number. First हम लेते हैं atomic number. Atomic number is denoted by capital Z. ओके, जो आइडिया था पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस का वो रदरफोर्ड ने दिया था, ठीक है। तो फिर इसने बताया कि जो नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड एज द एटॉमिक नंबर। मीन्स द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ड्यू टू द प्रोटॉन्स, बिकॉज ईच प्रोटॉन्स दैट carry only one unit positive charge. Okay, so the atom of an element that is equal to number of protons in the nucleus of an atom, and number of protons किसके इक्वल होता है बेटा, number of electrons के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम atomic number को कैसे define करेंगे, atomic number is defined as the number of protons in the nucleus of its atom, or the number of extra nuclear electrons in its atom. It is denoted by capital Z. Means atomic number Z, that is equal to number of protons, or you can say that it is equal to number of electrons. Suppose here I will take the example of sodium atom. Symbol is Na. Here हाउ मैनी प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द सोडियम एटम, तो कितने प्रोटॉन्स होते हैं बेटा, 11। तो इसका एटॉमिक नंबर भी कितना है, एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो 11। ओके, ये बन जाएगा। इट मीन्स ऑल द एटम्स ऑफ ए पार्टिकुलर एलिमेंट दैट इज मेड अप ऑफ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई, ओके, एंड ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स दैट हैव द सेम एटॉमिक नंबर, ओके। Now next is mass number. Mass number, it is denoted by E. The mass of an atom that is concentrated inside the nucleus. और न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रेजेंट होता है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है। एंड द मास ऑफ एन एटम इज ड्यू टू द मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको हम अगर इकट्ठा, अगर वो एक साथ होते हैं, कलेक्टिवली अगर वो होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मीन्स द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दैट आर कलेक्टिवली। इट मीन्स हाउ विल यू डिफाइन द मास नंबर, मास नंबर को कैसे डिफाइन करोगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ओके। इट इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल A, and capital A that is equal to number of protons plus neutrons, okay, and or you can say that number of nucleons is also called as the mass number, okay. अब in this case बेटा
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है. बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस इज समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूट्रॉन नंबर. इट इज डिनोटेड बाय n. ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो मास नंबर है दैट इज, ये मास नंबर है आपका, मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर. प्रोटॉन्स को हम क्या कह सकते हैं? एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रॉन नंबर. इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय n. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मास नंबर एंड that is equal to, mass number is equal to atomic number plus neutrons. Okay, now next topic is atomic mass and mass number. How the atomic number and mass number that are represented in the chemical symbol. देखो बेटा, this is the symbol and here mass number A and this is atomic number Z and this is the symbol. ये आपका symbol लिखा जाता है. This is mass number and this is atomic number. Okay, the mass number is represented on the top of the symbol and atomic number that is represented on the left bottom of the symbol. If the symbol is pose X, then atomic number is Z, this one, and mass number is A. Okay, then how will you calculate the number of protons, electrons and neutrons? देखो बेटा, calculation of number of protons, electrons and neutrons. Okay, suppose atomic number Z, that is equal to number of protons and number of electrons. ठीक है, and mass number is equal to, मास नंबर किसके इक्वल होता है? मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. दिस इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. ओके, सपोज एग्जाम्पल, इन मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर इज 12 and mass number is 24. How many electrons and protons are present here in case of magnesium? Okay, so in this case number of electrons that is equal to, बेटा number of electrons किसके इक्वल होता है? atomic number के इक्वल होता है. atomic number is 12. how many protons are present here? if atomic number is 12, proton is also 12. and what is the mass number? mass number के क्या होता है? न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? अब न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स. यहाँ से न्यूट्रॉन निकालेंगे. मास नंबर 24, प्रोटॉन इज 12 प्लस न्यूट्रॉन. देन न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 24 minus 12, that is equal to 12. If here I will take magnesium 2 plus ions, then in this case magnesium 2 plus means if any charge is present on the atom, then in this case if positive charge is present, it means these are formed by the removal of 2 electrons from the magnesium atom. like this, ये मैग्नीशियम है, यहाँ से अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते हो, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 2 है बेटा. अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स आप रिमूव करते हो तो ये स्टेबल बन जाएगा, बिकॉज 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके जो है ऑक्टेट रूल फॉलो करता है. ठीक है, तो तभी स्टेबल होता है. तो मैग्नीशियम पे कितना चार्ज आएगा? 2 प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया है. अब इस केस में देखो, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बेटा सेम रहेंगे. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज सेम, कितना? 12.
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके कम हो जाएंगे। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम क्यों होंगे बेटा? क्योंकि मैग्नीशियम पे 2+ चार्ज है, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स को आपने लॉस कर दिया है, ठीक है, रिमूव कर दिया है। तो आफ्टर दैट हाउ मेनी लेफ्ट? 2 and 8, 2 and 8, इट मीन्स टोटल इज 10. तो हियर 10 इलेक्ट्रॉन्स रिमेन present. Okay, and how many number of neutrons? So number of neutrons that will be same, that is 24 minus 12, that is equal to 12. Okay, number of neutrons that remain same. Now I will take next example, that is sulfur. Suppose S2 minus, find out the number of, ये क्या है? सल्फाइड है बेटा, दिस इज सल्फाइड, सल्फाइड आयन। इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। देखो बेटा, सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 16, एटॉमिक नंबर 16। मास नंबर कितना होता है? मास नंबर इज 32। ओके, तो कैसे निकालोगे? तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं? एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर इज 16, तो दिस इज 16। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होता है? एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, बट here 2 minus charge is present. It means the negative charge is formed by the addition of 1 or more electrons to the neutral atom. It means यहाँ पे S पे 2 नेगेटिव चार्ज है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन हुआ है यहाँ पे? मीन्स जो सल्फर है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। इस वजह से सल्फर पे कितना चार्ज है? 2 माइनस चार्ज है, ठीक है। तो ये कितना आएगा? एटॉमिक नंबर +2, ठीक है। तो 16 एटॉमिक नंबर है, इसमें 2 ऐड करना है बेटा, तो ये आएगा 18। तो आप ध्यान रखो, जब आपको प्लस साइन आता है तो आप 2 माइनस करोगे, ठीक है, और जब आपका नेगेटिव साइन आता है तो आप क्या करोगे? 2 ऐड करोगे, ठीक है। जितना चार्ज है उतना ही आप ऐड करोगे, बट प्लस और माइनस साइन आप देखोगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अब मास नंबर कितना है बेटा? 32 माइनस एटॉमिक नंबर दैट इज 16, इट मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 16। तो यू विल ऑब्जर्व दैट अगर कोई एटम्स न्यूट्रल है तो उसमें प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम रहता है, बट अगर कोई एटम पे चार्ज है तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का या तो लॉस होगा बेटा या गेन होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करना है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना है, ठीक है। सो दिस इज your atomic number and mass number, and how will you calculate the protons, electrons and neutrons of neutral atom? This is neutral atom, no? This is cation and this is anion. Okay students, please do practice how to calculate the electrons, protons and neutrons. Okay, thank you.